Am I audible? Can you hear me? Okay. So, good evening, everyone. Yes, good evening. So, today is the sixth lecture of the chapter of magnetism, which is the 12th chapter of 11th standard magnetism, and a very important topic because in NEET or JEE main, we have a section called electricity and magnetism. So that's why it is very important that every concept that we do has to be very, very clear. So I hope we have understood till now there is B axis formula, there is B equator formula, there is formula for B at any point. Then there is Earth's magnetic field. You have studied angle of dip, angle of declination, then the direction of magnetic dipole moment, the unit of magnetic dipole moment. So there are a lot of things to this, to this chapter. So we have done all those types, like how we cut a magnet, what happens if a magnet is placed one on top of the other, and so on. So today's first topic is solenoid. I'm sure all of you have heard this word, have seen this word, and you have actually seen it during school time. So if I ask you what is a solenoid, the definition of a solenoid is nothing but it is basically a long wire which is wound, right, in the form of a helix or a spring. Yes, whatever you say, spring is nothing but a helical model. So that is how you try to visualize a solenoid. So how does a solenoid look like on the screen? Whatever you see are some of the ways or some of the things that you must have seen in case of a solenoid, right? ऐसे tightly wound रहता है. You must have seen this, right? So tightly wound wires रहता है जो infinite length के रहते हैं, तो हम उसको solenoid कहते हैं. यानी कि they are very closely, बहुत दूर नहीं होते हैं, वो बहुत ही closely wound. So the word that you have to remember here is it is very closely wound, and it's made up of a number of turns, and its length is very, very long. So that is something that I really want you to remember. यानी कि उसके जो the turns जो होते हैं, कितने turns आप उसमें डालते हैं, right? The turns जो होते हैं वो बहुत ही closely packed रहते हैं, मतलब they are not like this. They are very closely packed. They are very close to each other and is very long. The solenoid is very, very long. So when we're talking about a solenoid, we're basically thinking of a very long solenoid compared to its cross-sectional radius. So I hope you'll remember this. Right? Now, I would like to draw it in my way of drawing. Like if I have to draw a solenoid, I would draw something like this. Because I want to see what happens when the current passes through a solenoid. So if you know a solenoid, it's in this way. So we can consider this to be a solenoid. So it's like a current carrying solenoid. Suppose I pass some current through the solenoid. So the current will pass through the solenoid. Anybody who can tell me what will be at the center of the solenoid? So current is passing through the solenoid. Current ऐसे pass हो रहा है इस solenoid से. So can anybody tell me कि if current is passing through this solenoid, then, okay. So Vatsal says it acts like a magnet. Abhishek says dipole. Pratham says magnetic field. Hemangani says, Anjali says magnetic field. Very good. So iske beech mein, that means you are aware that on top of this, like over here, you will see magnetic lines of force. I hope you're getting it what I'm saying. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? You will see magnetic lines, and these magnetic lines ऐसे कुछ दिखाई देंगे आपको. यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, there will be magnetic lines, and यहाँ पर, so you will see magnetic lines.
So these lines, how do they look like? So we call them magnetic lines. We say that ये जो है, this is nothing but your B bar. That means every coil is behaving like a magnet. हर एक कॉइल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? जस्ट लाइक अ मैग्नेट, जस्ट लाइक नॉर्थ एंड साउथ. यानी कि एक साइड इसका अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले रहे हैं, सो वी कैन से दैट नो मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रहे हैं. So can I say that this could be the North Pole and this left side could be the North Pole and right side could be the South Pole? Or vice versa. I should say this should be the South and this should be the North, because North से lines कैसे होते हैं? निकलते हैं हमेशा. तो ये निकल रहे हैं यहाँ पे और साउथ में हमेशा आते हैं. So I can say this is my south pole of the coil and this is my north pole of the coil. Okay, so next time I'll show you with the right hand rule, but right now you have to imagine like this. That means you have to imagine that these lines are concentric, or these lines are nothing but going to take a circle round. ऐसे जाके ऐसे आएंगे, ऐसे जाके ऐसे आएंगे. I hope ये clear है. So these are called as what? The magnetic lines of force, और ये solenoid structure में ऐसा दिखाई देता है. So can anybody tell me where is the magnetic field very strong in a solenoid? एक solenoid में magnetic field सबसे ज्यादा कहाँ होगा? Yes, in the middle. So middle portion में आप देखेंगे कि यहाँ पर वो काफी strong है. We can use the word strong, we can use the word uniform. अलग अलग नहीं होंगे, देर विल बी सेम. यानी कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हर जगह पे वो यूनिफॉर्म और वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. That means one end of this solenoid always behaves like the north pole and one end behaves like the south pole. और यहाँ पे थोड़ा वायर अपना लूज हो रहा है एंड्स पे. So at the end we say what happens? What is a word should I use? I should say that ये magnetic lines जो हैं वो diverge हो रहे हैं. Diverge at ends of the solenoid. Diversion हो रहा है. So वो क्या हो रहा है? It's basically diverging from one end and converging at the other end. क्या बोला मैंने? Ends में कैसा हो रहा है? एक तरीके से एक साइड पे वो डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे साइड पे वापस आ रहे हैं. दैट मीन्स दे आर कन्वर्जिंग at one end. So this is a very important statement. Diverge from one end and converge at the other end. और अगर आप ये पूरा डायग्राम देख लेंगे तो आपको अपना बार मैग्नेट ही याद आता है. दैट मीन्स द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड जो उसके चारों तरफ का फील्ड है, ये कुछ अपने नॉर्मल किसकी तरह ही दिख रहा है. दिस इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक योर बार मैग्नेट. दैट मीन्स that it is looking exactly like the bar magnet. So it behaves also similarly like the bar magnet. So you can say one end of the solenoid, one end of the solenoid behaves like north pole and the other end behaves like south pole. तो क्या क्या पॉइंट्स हम बता रहे हैं यहाँ पे? हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अ वेरी क्लोजली वाउंड वायर. It's a very closely wound wire in the form of a helix. फिर हम क्या बता रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सेंटर पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. हम बोल रहे हैं कि इट विल डाइवर्ज एट वन एंड एंड इट विल कन्वर्ज एट द other end, and the field distribution of the magnetic field is similar to that of a bar magnet, and hence one end of the solenoid behaves like north pole and the other end of the solenoid behaves like the south pole. So if you look at the, okay, now if you look at this whole structure, my question to you is, यहाँ पर आप समझते एंड पे थोड़ा वीक रहेगा, एंड पे थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा, जबकि सेंटर पे काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा.
Now let's look at the magnetic field outside. ये तो हम inside देख रहे थे. Look at the field outside and could you tell me where will be the magnetic field the weakest? Outside, not inside. Outside, where it will be the weakest. So you can say, देखो यहाँ पर तो हम बोल नहीं सकते वीक है क्योंकि काफी लाइंस है यहाँ पर. आप यहाँ पर भी वीक नहीं बोल सकते, है लाइंस तो है. सबसे वीक एक्चुअली वो बाहर इस ये एरिया में रहता है. मतलब द फील्ड आउटसाइड इज वेरी वीक नियर द मिड पॉइंट. इज दैट क्लियर? तो the field is not very strong at there. Even if you look at the corners, it is काफी corners पे भी आपको lines दिखाई देते हैं, but काफी just बाहर center के वहां पर आपको बहुत ही कम दिखाई देता है. So this is nothing but the magnetic field of a current carrying solenoid. This is the way to imagine the current carrying solenoid similar to that of a bar magnet. This is the diagram of a current carrying solenoid. क्या बोला मैंने? Current carrying solenoid. ऐसे ही solenoid नहीं है. Current carrying solenoid और ये उसका magnetic field का distribution है, and this is similar to a bar magnet. This is similar to a bar magnet. Are you getting what I am saying? So this is how the whole thing must look like. So you have a solenoid, which is a long wire, which is wound in the form of a helix. It is tightly wound. The turns are very closely spaced and the solenoid is very long compared to its cross-sectional radius, right? So each turn of this current carrying solenoid will, each turn, हर एक turn को आपको देखना है. So every turn, I will explain to you with the right hand rule next time on video. This is going to be nothing but your solenoid, or I mean एक turn. That means there are multiple turns, right? तो यहाँ पर हम ऐसे, मुझे ये आपको हाथ से ही दिखाना पड़ेगा. So अगर ये current clockwise direction में है, I think you must have studied this. Can anybody tell me the right hand rule? कि this phase will behave like which pole? Anybody who can tell me what does this phase behave like? अगर ये ऐसे direction में current जा रहा है, ऐसे direction में current जा रहा है, so this actually behaves like the south pole. I will explain to you, don't worry. This behaves like south और इसके पीछे जो है वो north pole होता है. So सिर्फ इतना याद रखें आज के लिए. Then I will explain on video because I have to show you through my hand. तो अगर वो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये बन जाता है नॉर्थ. ऐसे डालेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि इसका एरो और अगर इसका एरो मिलता है तो नॉर्थ है और ये ऐसे साउथ है. तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये साइड साउथ है, पीछे वाला नॉर्थ है. और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आगे वाला नॉर्थ है और पीछे वाला साउथ है, right? So this is the way you are going to basically look at the entire structure of a solenoid. So any doubts here I can take, because this is how the solenoid structure. अभी इसका एक derivation भी है जो हम आगे 12th standard में करेंगे. तो ये बहुत ही important है कि current carrying solenoid के चारों तरफ जो है, you will see quite yes beta, what is it? Yeah, so they are just comparing. वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो टर्न्स होता है ना, सो सोलोनॉइड काफी वेरी लॉन्ग होता है कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल रेडियस. मतलब इसका जो रेडियस होता है और इसकी जो लेंथ है, दोनों मीटर में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है उसके रेडियस से भी ज्यादा होती है. यानी कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं 2 मीटर का अगर रेडियस पकड़ते हैं तो आप सोचना कि सोलोनॉइड तो काफी 10 मीटर तक होता है, राइट? Yeah, so the direction part I will teach you when I show you on camera, because that I have to show you with my hand. So next lecture I will show it to you on camera. Okay. So right now just get an idea about how the field distribution, ये जो मैंने draw किया है वो actually field distribution of a current carrying solenoid है. कैसा है? फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड है. आई होप ये दिमाग में बैठ गया है, उसके पॉइंट्स बैठ गए हैं.
कि एक लॉन्ग वायर है, उसको हमने वाउंड किया है हेलिकल फॉर्म में, एंड ये एक आइडियल सोलेनॉइड होगा। अगर हम राम इफ यू लुक एट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वीकर हम लोग, वीकेस्ट हम लोग बोलते हैं बाहर, बट इफ यू आर लुकिंग एट द नेचर ऑफ द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, समझो यहाँ सेंटर पे 10 टेस्ला है, तो याद रखना कि एंड्स पे वो 5 टेस्ला हो जाता है। यू अंडरस्टूड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो टेस्ला इज द यूनिट। तो अगर बीच में 10 टेस्ला है तो कॉर्नर्स पे आप समझो 5 टेस्ला हो गया। आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। और इस जगह पे बहुत ही कम होगा, 1 टेस्ला कुछ होगा, क्योंकि वहां लाइंस बहुत कम वहां तक पहुंचेंगे, राइट। से इफ आई ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई शो यू लाइक दिस आल्सो, सो इतने सारे लाइंस यहाँ नहीं होते, यू नो, द देयर विल बी लाइक ऐसे, फिर ऐसे, यू नो। सो बीच में बहुत स्ट्रांग होता है, एंड्स पे एग्जैक्टली हाफ हो जाता है द कॉर्नर, यस एग्जैक्टली करेक्ट, बिकॉज एकदम एंड पे एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द सेंटर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द सेंटर, क्योंकि वहां बहुत सारे लाइंस रहते हैं। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सबके दिमाग में बैठ गया हो, आई होप दैट दिस इज सोलेनॉइड। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड, एंड कैन यू say about the magnetic field which is produced by a current carrying solenoid। एक current carrying solenoid को आप पिक्चर फॉर्म में दिखाना पड़ता है, और ये बताना है आपको कि दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये किसकी तरह दिख रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब सेम एज, व्हाट इज इट लुकिंग लाइक। वेरी गुड राम, वेरी गुड राज, करिश्मा, हिमांगी, गोविंद। So it is looking, Sania, Mehak, Pranay, so it's looking exactly like the bar magnet, right? So this entire thing looks like a magnetic dipole. So ये question है 3 marks का, कि can you explain how it is, you know, what is the equivalence between the magnetic dipole and the current carrying solenoid। तो जैसे कि हमने पहले बार मैग्नेट के फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया था, वैसे इसका भी ड्रॉ करना है, और फिर दोनों के बारे में आप कितने कितने पॉइंट्स बता सकते हो, राइट। आप देखेंगे कि these lines also they do not intersect, yes or no। So there is a clear uniform magnetic induction, and it's kind of diverging from the ends, and diverging from one end and converging at the other end, so it remains the same, you know, north to south and so on। yes, 10th में था, correct। so I hope ये solenoid का concept आपको clear है। can I proceed? yes yes, same, it will also originate from north to south। कोई भी आपको बोले कि जो बेस होता है उसको चेंज नहीं करना है, ओके, बेस रिमेन्स बेस ओनली। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ ही जाएंगे, वो साउथ टू नॉर्थ बोला उसको बोलना चुप बैठो दो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ही जाएंगे। वो कोई भी रूल हम जो पढ़ाते हैं आपको 11th स्टैंडर्ड में, वो कहीं 12th में जाके चेंज नहीं होता है। इट इज द बेस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, तो वो कभी चेंज नहीं करना है। So this way you will see the entire pic of the solenoid, and I am proceeding to the next topic. So in the next topic, that is, we have already done Earth's magnetic field, and we had studied about the you know, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट क्या था, एंगल ऑफ डिप था, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन था, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट। सो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, आई होप यू रिमेंबर दैट। एंड एंगल ऑफ डिप इज बिटवीन बी एंड बी एच, बी एंड बी एच के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, यस करेक्ट, बी बी एच, करेक्ट। So before I come to Gauss's law, I wanted to finish off with this part. So now there is this question, or you know, ये काफी बार वो लोग पूछते हैं कि what are the magnetic maps, ऐसा करके क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मैग्नेटिक मैप। सो अगर आप इसको गूगल करेंगे, आप देखेंगे इसके बहुत बहुत सही पिक्चर्स है गूगल पे, इस पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिखाई देता है, यानी कि आपको रेड कलर, ग्रीन कलर, ये सब जो दिख रहा है, और आप देखेंगे। सो इसका अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके आपको बताऊं, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, यू नो, दीज लाइंस आर देयर। So it tells us about where the magnetic field is strong, where it is weak, and so on. So I'm coming to the concept which is called as magnetic maps.
और इसके यूजेस क्या हो सकते हैं. सो द क्वेश्चन ऑल्सो इज आस्क्ड लाइक दैट कि व्हाट आर मैग्नेटिक मैप्स एंड स्टेट देयर यूजेस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो geomagnetic elements, anybody knows what is geomagnetic elements? अगर मैंने आपको पूछ लिया कि ये geomagnetic elements मतलब क्या, तो geomagnetic elements मतलब जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो declination, dip, horizontal component of Earth's magnetic field, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इसको क्या करते, इसको हम क्या कहते हैं, जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स. आई रिपीट, ये जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कौन कौन है? एक तो है अपना एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जो हमने थीटा नाम दिया था. फिर अपना क्या रहता है, डिप, दैट इज हमने डेल्टा दिया था. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब बीएच, बीएच और बीवी करके दिया था, राइट? and B bar, you know, that is the Earth's magnetic field. So ये जो चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं या जो हम आपको पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनको हम एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए. उसका नाम क्या है? जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स. सो डोंट फॉरगेट द वर्ड, द जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स. क्या कहते हैं इसको? जियोमैग्नेटिक एलिमेंट. सो व्हेन आई टेल यू जियोमैग्नेटिक एलिमेंट है, तो आप सोचने लगे हो, हाँ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा, एंगल ऑफ डिप होगा, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा. और ये जो सारी चीजें हैं, ये खास बात क्या है, ये व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलिंग इट एज अ मैग्नेटिक मैप? कैन एनीबडी थिंक? मैग्नेटिक मैप क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि कुछ जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है और कुछ जगहों पे वो कम होता है, जैसे कि हमने सोलेनॉइड में देखा, जैसे कि हमने बार मैग्नेट में देखा. मतलब कैन आई से दैट ऑल दीज फैक्टर्स दे कीप वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग लोकेशन पे इनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं. किनके वैल्यूज? डेल्टा, थीटा, बीएच और बी के. इनको हमने क्या नाम दे रखा है? जियोमैग्नेटिक एलिमेंट्स. और ये चीजें जब पूरे अर्थ के हर एक पॉइंट पर वेरी होते रहते हैं, तब हम इनको मैग्नेटिक मैप्स करके नाम देते हैं. इनका नाम क्या है? मैग्नेटिक मैप्स. दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मैप्स. So what you are seeing here is nothing but the magnetic map. और हर जगह पे इसका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है. Now, why does it change? Because on the surface of the earth, there are a lot of chemistry related factors also, which I will not be discussing, but you can understand that everywhere the temperature, things, then on not only that, about the archaeological part of it, the magnetism of the rocks that we find, so all these change what the magnetic field. मान लो एक जगह पे बहुत सारा मेटल है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा उस जगह पर. सो अर्थ की जब हम बात करते हैं, सो इफ यू बरी सम बिग बिग स्ट्रक्चर्स, देयर कुड बी मिनरल्स, देयर कुड बी मेटल्स, देयर कुड बी एन एंटायर सिटी. और आर्कियोलॉजिकल जो रहता है, तो उसके हिसाब से हमारे जो फील्ड है वो वेरी होती रहती है. सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक मैप्स? ये मैग्नेटिक मैप्स, या दूसरा एक नाम है इसको, like even if you write this as instead of magnetic maps, some of them use the word as magnetic anomalies, so anomalies. तो अगर आप ये anomalies word करके भी देखते हैं, तो even if you put this into Google, you will find these kind of maps. How they draw it? They draw it based on the magnetic field. I will show you. वो magnets को रखते हैं और वहां पर उनको field distribution मिलता है. You will see it, like if you're doing an experiment in the practical, I don't know how many of you all have noticed कि आपके फोन के अंदर भी एक थोड़ा सा मैग्नेटिक ये होता है, जहां पर आपका स्पीकर होता है, और अगर आप टीवी के आजू बाजू आते तो फ्लिकर हो जाता है वहां पे फील्ड. सो दैट इज जस्ट माय इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. मतलब वो एक ऐसा हो गया. बट ये जो है, ये हम लोग अपने बार मैग्नेट के जरिए इसको ड्रॉ किया जाता है.
all this is drawn. So that's why these are very very important, because agar earth ka magnetic field idhar udhar hota hai, see, it affects so many things, like when we are talking about radar systems, we are talking about flights, we are talking about, so the earth's magnetic field is everywhere. So it does vary everywhere depending on where it is. तो अगर हमें पता चला कि यहाँ पर भाई मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो हम अगर खोद के देखेंगे तो we will get something like that. Even birds, I don't know whether you are aware, even these fishes and birds, they use the earth's magnetic field to go from one place to another. So they don't use the magnetic maps, but they know like where the field is high, where the field is less, and that also makes a lot of difference. Yes, yes, very interesting topic it is actually, if I have to sit and talk about 1 hour. But these fishes and all that, they know कि field कहाँ कम है, field कहाँ ज्यादा है. Especially birds are very sensitive to all that. So you must know that these things exist. मतलब ऐसा नहीं कि यार पता नहीं क्या है. So these are called these magnetic maps. So इसमें कुछ words हैं जो आपको पढ़ना है या सीखना है. So they are called as, so there is another question. So these are magnetic maps, and then they will ask you what are isomagnetic charts and which are the different types. So isomagnetic charts मतलब कुछ ऐसे दिखता है. So that's why I took some pictures. They look something like this, so like these charts you can see. So they will show you where the magnetic field is less, and they have put some values here. You can see some different values that they have put all around the earth. So these lines are like contours. Contour का मतलब होता है बंद है actually, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है भाई. सो दीज लाइंस आर लाइक ऐसे ऐसे बंद है. हाँ, जैसे कि मैंने कहा बेटा मनीष, मैंने कहा ना कि मेटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ ज्यादा मेटल का डेपोजिशन है. वो सब भी हम मैग्नेटिक मैप के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दीज लाइंस. सो अगर लाइंस बहुत क्राउडेड है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड है, देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट्स व्हाई इज इट क्राउडेड इन दैट एंड एंड सो ऑन. सो ये आइसोमैग्नेटिक चार्ट्स आर नथिंग बट कॉन्टूर प्लॉट्स. क्या वर्ड याद करना है? कॉन्टूर. Contour actually means closed, so you'll find this word even in mathematics when you're talking about any closed structures. So they are like basically contour plots of magnetic elements, and they are this is the map of the world. Har jagah pe aapko ye contour maps dikhenge. That's why they are called as contour plots of the magnetic elements. They are called as contour plots of the magnetic elements, and they are superimposed on this map. So let us see the different words and what are the meaning of the word. तो यहाँ पर आपके सामने 3 words हैं: isodynamic, isogonic, isoclinic. क्या है? Isodynamic, isogonic, isoclinic. I repeat again, isodynamic, isogonic, isoclinic. तो मैं पहले isodynamic की बात कर लूं. ये क्या है? इट इज अ लाइन. ये सब लाइंस है. तो ये लाइंस क्या है? वो किसको कनेक्ट कर रहे हैं? वो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है. अगर एक जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हम कहते हैं कि वो वाला लाइन भाई आइसोडायनामिक है. यू अंडरस्टैंड? यानी कि ये ऐसे हमने दिखा दिया, ये लाइन के सारे पॉइंट्स, ये लाइन के सारे पॉइंट्स, ये लाइन के सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? सेम रहता है. तब हम उसको कहते हैं एज आइसोडायनामिक लाइंस. Are you with me? Are you getting it? या द मेराकेटर मैप इज बेसिकली कैसा होता है? आपने देखा रहेगा वो फ्लैट काइंड ऑफ मैप्स रहता है, नॉट द ग्लोब. ग्लोब के ऊपर ये ड्रॉ नहीं किया जाता.
ये जो है वो फ्लैट मैप होता है, पूरा का पूरा जो दिखता है. सो द इट वाज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ ए cylindrical projection that was done, where we can actually put all of the lines properly. So this was ये जो Mercator projection होता है, this is by some if I remember correctly, some geographer had made this kind of map, and on this map we are basically putting the other maps to find out. So these are called cylindrical map projections. These are called as cylindrical map projections because ये कंपस वगैरह के लिए चेक जो होता है, तभी आपने देखा रहेगा ना ऐसे रोल करके पूरा जो एटलस दिखाते हैं, दोज आर मेराकैटर मैप्स कहते हैं उसको. सो आइसोडायनामिक का मतलब क्या होता है? इट इज वो लाइंस होते हैं, द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स वेयर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. The earth connecting the lines where it is a line connecting points where the magnetic field is the same. I hope you will remember this. ओके, सो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लाइन सेम है, उन लाइंस को हम आइसोडायनामिक लाइंस कहते हैं. तो अभी आइसोगोनिक और आइसोक्लिनिक को कैसे याद रखना है? एक्चुअली आइसोगोनिक मतलब क्या होता है? वो लाइंस होते हैं जो कांस्टेंट एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या इक्वल एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, यहाँ पर भी इक्वल और कांस्टेंट एंगल ऑफ डिप. तो इसको याद कैसे रखते हैं? लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. So I'm just writing it down here. Suppose I say isogonic. So it is like isogonic line. And this is isoclinic line. Okay. So जहां निक है, NIC है, वहां डिप लिख दो इस तरफ, मतलब एंगल ऑफ डिप, मतलब वो. एंड यहाँ पर जहां क्लिनिक है वहां आप डेक्लिनेशन. ओके, सो ऐसे लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे डाल देते हैं. अभी इजी हो गया. सो हर एक पॉइंट पर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोगोनिक लाइन कह रहे हैं, वो हर एक पॉइंट पर आइसोगोनिक के हर एक पॉइंट पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है वो इक्वल रहता है. याद रहेगा, आइसोगोनिक के केस पर हर एक पॉइंट पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या रहता है? सेम रहता है. और आइसोक्लिनिक लाइन पर हर एक पॉइंट जो रहता है, मतलब जो कॉन्टूर फॉर्म होता है, जो क्लोज लूप या जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसके एंगल ऑफ डिप सेम रहता है. विल यू रिमेम्बर इट? आइसोगोनिक लाइन इज अ कॉन्टूर ऑफ इक्वल or constant inclination, or isogonic is basically constant declination points and isoclinic is dip points. याद रहेगा? सबको याद रहेगा? सिमिलरली कुछ NCERT क्वेश्चंस में, या they have two more words are there. I don't know how many you must have seen. So there are two more words जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, but it is better that आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने ये तो देखा ही नहीं था. ये एगोनिक भी होता है. क्या बोलते हैं इसको? एगोनिक भी होता है और अक्लिनिक भी होता है. ओके, एगोनिक भी होता है और अक्लिनिक लाइंस, ये भी लाइंस ही है. दीज आर आल्सो सम लाइंस ओनली जो आपके बुक में नहीं है, बट मैंने सोचा कि आपको पता रहना चाहिए. तो वापस इधर क्या आया? NIC आया, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? डिप. और यहाँ क्या आया है? क्लिनिक. आप लिखेंगे डेक्लिनेशन. सेम थिंग. क्या करना है अभी आप ही मेरे को बताओ कि एगोनिक क्या होगा? क्रॉस करो. एगोनिक लाइंस वो लाइंस होंगे, यस, अगोनिक लाइंस वो लाइंस होंगे जहां पर इक्वल या कांस्टेंट एंगल्स ऑफ डेक्लिनेशन होगा. और अक्लिनिक लाइंस वो होंगे जहां कांस्टेंट या कांस्टेंट या इक्वल
points of angle of dip होगा. Yeah, that's what I'm saying, that even if they say that, it means almost the same. Yeah. Oh, I'm so sorry. Wait. बताती हूँ. हाँ, डिफरेंस है. एक मिनट, पहले ये देख लेते हैं. ये क्लियर हो गया सबको कि अगर ये आइसोगोनिक लाइंस वो होते हैं जहां हर एक पॉइंट का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या रहता है, सेम. और आइसोक्लिनिक, यस आई एम टेलिंग यू दिस डिफरेंस, आइसोक्लिनिक लाइंस वो होते हैं जहां डिप ये होता है. सो आई विल जस्ट राइट हियर सेम मतलब हर एक पॉइंट का एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डेक्लेरेशन सेम रहता है. ये वाला क्लियर हो गया सबका. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ आई विल कम टू दोज लाइंस. ये क्लियर हो गया. नाउ लेट्स कम टू दीज लाइंस. इनका क्या है कि सेम स्टेटमेंट वही है, बट यहां याद रखना है जीरो. मतलब एगोनिक लाइंस वो लाइंस होते हैं जहां इट जॉइंस ऑल द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज जीरो. एंड अक्लिनिक लाइंस वो लाइंस होते हैं, वो सारे वो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जहां आपका एंगल ऑफ डिप जीरो रहता है. अभी क्लियर है क्या? yes or no? I repeat once again, isogonic lines वो lines है which joins, lines ही है ना, सब lines ही है. मतलब now when I say isogonic, see I have shown you that this is isogonic. when I show ऐसे lines दिखाएंगे और बोलेंगे यार ये जो अपना latitude longitude पे ये वाला जो है ये आइसोगोनिक है. तो आइसोगोनिक मतलब क्या है? आइसोगोनिक में क्या होता है? सेम. यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर क्या सेम है? क्या सेम है? आइसोगोनिक के हर एक पॉइंट पर क्या सेम है? बताओ. आइसोगोनिक के हर एक पॉइंट पे कौन सा एंगल सेम है? आइसो बोला तो सेम आता है. इट इज सेम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. और अगर मैंने अगोनिक बोल दिया होता, मैंने आपको बोला होता कि ये एगोनिक लाइन है, तो आपको सोचना है अच्छा ये लाइन जिस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है हर जगह पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जीरो है. क्लियर है? यस. सो अ बोला तो समझ जाने का. हमेशा क्या होता है? निगेट वर्ड होता है ना वो. अक्लिनिक अगोनिक मतलब जीरो. आइसोक्लिनिक एंड ऑल दैट विल बी सेम. अगोनिक मतलब जीरो वर्ड आना चाहिए यहाँ पे और सेम यहाँ पर आना चाहिए. तो मैंने कैसे आपको बोला कि अगर एनआईसी आप यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ डिप आएगा, और क्लिनिक अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ डेक्लिनेशन आएगा. दोनों को क्रॉस कर दो तो फिर यहाँ सेम है, वहां जीरो है. पक्का? एवरीवन? सो अब जब आप डेफिनेशंस लिखते हैं तो हमेशा ऐसा बोलेगा आइसोगोनिक इज अ कॉन्टूर. आइसोगोनिक इज अ कॉन्टूर. सब कुछ कॉन्टूर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है. तो नॉर्थ टू साउथ कुछ इज ऑलवेज क्लोज्ड. सो ऐसे ही बोलने का कि आइसोगोनिक इज अ कॉन्टूर, आइसोक्लिनिक इज अ कॉन्टूर, एवरीथिंग इज अ कॉन्टूर. कॉन्टूर वर्ड आना चाहिए वहां पे. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. yes करेक्ट राम. यस. सो कॉन्टूर वर्ड आना चाहिए. मतलब अगोनिक भी इज अ कॉन्टूर. इट इज अ कॉन्टूर ऑफ जीरो, जीरो एंगल्स ऑफ डेक्लिनेशन, राइट? यानी कि हर एक पॉइंट पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जीरो है. अ क्लिनिक इज अ कॉन्टूर ऑफ जीरो पॉइंट्स ऑफ डिप. सो दिस यू हैव टू डू. ठीक है? कॉन्टूर मतलब सर्कल बेटा, गोल है ना, ये कॉन्टूर है. इसलिए तो मैं ये दिखा रही थी तुमको कि ये सब कॉन्टूर है. अगर आप देखेंगे ये कॉन्टूर है, ये कॉन्टूर है. कॉन्टूर मतलब क्लोज्ड. मैथमेटिक्स में बहुत ऐसा आएगा कॉन्टूर, बिकॉज आई नो व्हाट इंटीग्रेशन यू विल बी टेकिंग. So you will come across this word contour when you do the topic of integration, because integration is fantastic. It is really, really very good. So I hope that time the contour concept will come. But what you see, I mean, it is visual. आपको दिख रहा है ये सर्कल सर्कल जो होता है, इसी को हम कॉन्टूर कहते हैं. सो द होल अर्थ जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, हमने उनको कॉन्टूर्स में डिवाइड कर दिया.
और उसमें हमने नए नए वर्ड्स आज पढ़े, इसलिए मैंने तभी नहीं पढ़ाया, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंगल ऑफ डिप भी आ गया, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी आ गया, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, बीएच भी आ गया, बीवी भी आ गया, सब लोग आ गए, मेरिडियन भी आ गया, लाइंस भी आ गए, एक्सिस भी आ गया। अगर मैंने तभी तुमको आइसोगोनिक, पागल हो जाते तुम लोग। सो वी रियली कांट गो एंड स्टडी एवरीथिंग टुगेदर, थोड़ा थोड़ा परफेक्टली पढ़ना है। आइसोगोनिक, आइसोक्लिनिक, अगोनिक, अक्लिनिक, आइसोडायनामिक, अभी ये तो आना ही चाहिए। तो आइसोडायनामिक कौन से लाइंस होते हैं? जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सेम रहती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इट ऑलवेज हैज टू बी ओनली अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विच इज सेम। आइदर बी सेम हो सकता है, या बी एच सेम हो सकता है, या बीवी भी सेम हो सकता है। आई होप यू नो दैट इसके भी बी सेम हो सकता है, आइदर बी एच सेम हो सकता है, नहीं तो बीवी सेम हो सकता है। समझ रहे? यस और नो? सो गए? जाग जाओ, जाग जाओ। Physics is life, physics is fantastic. If you know it, you learn it better, and if you understand it, it gets better by the day. And if it is very confusing, then it stays confusing every time. So isodynamic matlab, I can say it is a line connecting points where the earth's magnetic field is same. I can say it is a line connecting points where the earth's horizontal component of earth's magnetic field is the same. Or if I say it is a line connecting the points where the vertical component of Earth's magnetic field is the same. तो मैं कुछ भी बोलूं, it all comes back to isodynamic. It comes to three types, it can be of three types. तो ये चार्ट जो होता है, तीन टाइप के चार्ट्स होते हैं. One is isodynamic chart, one is isogonic chart, and the other is isoclinical भी बोलते हैं, isoclinic भी बोलते हैं. So I hope all the words are clear. यहाँ पे आपके सामने 5 वर्ड है: आइसोडायनामिक, आइसोगोनिक, आइसोक्लिनिक, अगोनिक, अक्लिनिक. ये पांचों वर्ड समझ में आया? पक्का? एवरीवन? I hope this part is very, very clear, because this is really, really, really important. So these words are, that's why they are called as the isomagnetic charts. So they are basically contour plots of, where the magnetic elements. So when I say magnetic elements, that means you have to think about delta, you have to think about theta, you have to think about B, you have to think about BH, you have to think about BV, and so on. Okay, BV. Yeah, BV is vertical component of Earth's magnetic field. Yeah, I'm not talking about your BV. I don't know why the boys are laughing. So it's not that. Okay, yeah. So I hope you're getting this. Everyone clear? Yeah. Nothing, Govind, nothing. Yeah. I can get you a diagram, Nusrat. It's just 1 minute. Just give me a minute. I'll be back. Y'all can keep, y'all can write this down meantime. I'll just be back. Just give me a minute as everyone wants to see. So I'm just showing you because everyone wants to know what's a Mercator. So I'm just showing you that. I'm just putting it onto this page. So these were, I don't know whether you have seen, these kind of maps are called the Mercator maps. So, they got to see the whole of Earth in one map. So can you all see what I have put on the screen? So that is what is called as the Mercator. So इसके ऊपर जो हम लोग फिर क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस जो है उसको सुपर इम्पोज करते हैं. So that's so I can just get you that picture also. They're called, they're either called as isomagnetic maps, or they're called as isomagnetic basically charts. You can see those kind of charts also.
So I'll show you how they look like. So एक को एक के ऊपर एक डाल देते हैं वो लोग. So what you see here, इसके ऊपर वो लोग क्या डालते हैं is something like this. So just trying to enlarge it. I hope you can see it. So इस तरीके का चार्ट बनता है. These are called as the superimposed chart of the field onto superimposed मतलब एक के ऊपर एक. बराबर है ना. पीछे एटलस दिख रहा है ना. पीछे तुम्हारा एटलस है और आगे ये तुमको लाइंस दिख रहा है. So that's called superimpose. So I hope this is clear now. पक्का. Okay. So ये topic बहुत important है. Yeah, I've not got a proper this thing because it's not available in your textbook. So I'm just trying to take it from the internet. So it just means no, I have already given you a clear picture actually here. ये एकदम clear picture है ना यहाँ पे, right? This one is absolutely clear. This itself is the same thing here. इसी को मैंने यहाँ दिखाया है. In fact, here और भी clear है. So somebody wanted to see the Mercator. So this is called Mercator actually. Yeah, so when you look at this, you come to know which points where the lines are, कौन से जगह पे सबसे ज्यादा B है या magnetic field है, कहाँ पर weaker है. बहुत सारे ऐसे points है, आपको दिख रहा है खाली भी है, जहाँ पे lines pass नहीं हो रहे. So they are called neutral points, जहाँ पर magnetic field zero होता है. So there is a concept called neutral point concept in magnetism, which we will elaborate when we are doing the 12th standard. तो अभी तक इतना तो पता रहना चाहिए भाई. So this is something which is very, very important. Yeah. Is it done? So I am going back to what I was doing. So I hope the concept of magnetic maps is very clear to us. So we first looked at solenoid, then we looked at magnetic maps, and now we are going to look at a very, very important topic. So is this clear now, everyone? Okay. So I'm proceeding to the next part of the topic, which is this is very, very important mathematically. It's called as the Gauss's law in magnetism. आप Gauss's law you're going to study in electrostatics also. Electrostatics में भी आप Gauss's law पढ़ने वाले हैं. Can you hear me? Some connection. Yeah. Okay. So now let's look at the Gauss's law in magnetism. So now, when you look at magnetism and you're looking at the flux, so suppose you have the bar magnet and you have the north pole and you have the south pole, right? You know that there will be magnetic lines from north to south. There will be north to south. ऐसे magnetic lines होंगे. And these lines are all closed magnetic lines. They are all closed structure. You can even draw them like this, they start like this off. So this is the kind of nature of magnetic lines. तो ये lines को एक common word है. इसको क्या कहते हैं हम लोग? What are these lines called as? अगर मैंने for example एक एक area ले लिया ऐसे, like I take some structure like this. मैं क्या बोलूंगी इसके अंदर के ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर के लाइंस को हम क्या नाम देंगे? एनीबॉडी कैन थिंक व्हाट विल बी दे कॉल्ड एज? वेरी गुड महक, वेरी गुड महक गुप्ता. इट विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स.
क्या कहेंगे इसको? फ्लक्स. यू रिमेम्बर व्हाट वाज फ्लक्स, राइट? सो कितना फ्लक्स, ये क्लोज्ड सरफेस है, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इट इज अ क्लोज सरफेस. So that means in this definition, whenever you see a closed surface, so what is the yes, the number of magnetic lines which is in this closed surface is called as magnetic flux. And if this entire thing on the surface, b bar dot ds bar, we say is equal to 0, ये इसका, this is called magnetic flux. This is called magnetic flux. And this is closed integral of b bar dot ds bar, which is equal to 0, where the integration is over the entire closed surface. इंटीग्रेशन मतलब हम सारे लाइंस को जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है, हम बोल रहे हैं इट इज इक्वल टू 0. कोई सोच सकता है why have I said it is equal to 0? Can you think? We are saying that this is a closed structure, और इस closed structure के अंदर डॉट प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट. बी इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएस इज नथिंग बट एरिया. ये एरिया जो है इसके, ये जो बॉक्स मैंने कंसिडर किया वो उसका एरिया है. बट हम कह रहे हैं इट इज इक्वल टू 0, तो क्यों ऐसा होता रहेगा? Okay, people are thinking trigonometry. Okay, that is also, but you'll have to prove it. When you say that cos 90 is 0, लॉजिकली क्या है वो, थियोरेटिकली बाद में देखते हैं कि वो 0 कैसे है. लॉजिकली आपके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जितने लाइंस जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने लाइंस इस बॉक्स के अंदर जाते हैं उतने ही लाइंस उस बॉक्स के बाहर आते हैं. तो बॉक्स के अंदर कितने लाइंस हैं? 0. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस कैसे स्ट्रक्चर है? क्लोज्ड, बंद वाले हैं. तो जितना जाएंगे उतना ही आएंगे, जितना नॉर्थ पोल से निकलते हैं उतना ही साउथ पोल से आ रहे हैं. आपको समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, लाइन इंटीग्रल भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन हम लेते हैं, इसका अंदर है कि ये जो कॉन्टूर है, देखा आप, कुछ लोग ना मैथमेटिक्स में इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिख के ऐसा सी डालेंगे. कॉन्टूर मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होता है. तो इफ यू आर टेकिंग अ सरफेस टू क्लोज इट, आप इसको एस डालेंगे. सो बेसिकली इसका जो नोटेशन होता है, ये लाइन के लिए होता है, ये सरफेस के लिए होता है, और ये वॉल्यूम के लिए होता है. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस. दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम, दिस इज सरफेस, दिस इज लाइन. मैथमेटिक्स, यू विल कम अक्रॉस दिस. आप लाइन इंटीग्रेशन ले रहे हैं कि आप सरफेस को ले रहे हैं कि आप वॉल्यूम को ले रहे हैं. यहाँ पे मैं सरफेस ले रही हूँ, बट एक ही इंटीग्रेशन दिखाया उन्होंने, तो मैं भी ऐसे दिखा रही हूँ. एक्चुअली बेसिकली इट्स अ लाइन इंटीग्रल, बट बिकॉज दे आर टेकिंग अ क्लोज सरफेस, उन्होंने लिखा है ना क्लोज सरफेस. तो एक, अगर आप ऐसा देख लेते हैं, आपको दिख रहा है कि जितने लाइंस गए उतने लाइंस ही बाहर आए. So that is equal to 0. That is just notation, Nusrat. Nothing to be worried about. Yeah, it has nothing to do. I just told you that if you take volume, that's the symbolic way of looking at it. So यहाँ पर हमने मैग्नेटिक लाइंस ले लिया और उसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक बॉक्स डाला. उस बॉक्स में जितने लाइंस अंदर जा रहे हैं उतने ही लाइंस बाहर आ रहे हैं. मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा? 0. फ्लक्स मतलब क्या होता है याद है आपको? मैंने आपको बोला था कि कप लेके खड़े हो जाओ, शावर के नीचे जितना पानी कप में गिरेगा उतना फ्लक्स कहलाता है. यहाँ पे कप है आपके पास, पर जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है, कप में बच ही नहीं रहा है कुछ. तो फिर आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 है, बिकॉज अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग. राम, कप में होल है. यस, करेक्ट, आई एग्री विथ यू कि जितना कप के अंदर गया वो होल से बाहर चला गया, कुछ बचा ही नहीं कप में. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है क्या? सो दीज आर कॉल्ड एज, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ गॉसेस थ्योरम. ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता. मतलब हम ये गॉसेस लॉ से क्या पढ़ रहे हैं?
हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता. हैव यू सीन अ चार्ज? सपोज आई से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में उतना ही जा रहा है. सो हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि कुछ बच नहीं रहा है. सपोज वी हैड सम सॉर्ट ऑफ अ चार्ज, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज. आपने पढ़ा रहेगा नेट पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसे लाइन सिर्फ आ ही रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, मतलब. तो अगर मैंने इसको पकड़ लिया एक सर्कल में, कैन आई से फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो? because they are just coming out from one place. But if you look at a bar magnet या कोई भी आप solenoid ले लो, तो problem क्या है यहाँ पे कि north से जो आता है वही south में आ रहा है. मतलब जितना बाहर निकला वही अंदर जा रहा है, जितना बाहर निकला वही अंदर जा रहा है. Yes or no? So इसका मतलब क्या है? What are the conclusions that we have to do from Gauss's theorem? We have to say that the magnetic monopole does not exist. मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता. सही है कि गलत है? सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है क्या? सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. समझ रहे? और जितना फ्लक्स कोई भी वॉल्यूम से जाता है, कोई भी सरफेस से जाता है, हमेशा वो क्या होने वाला है? जीरो ही होने वाला है. So I don't want you to remember all this. I have just written it over here, but I do not want you to remember all of these. I just need you to remember 2 points, which I am going to write here. The Gauss's law in magnetism, the Gauss's law in magnetism is pointing out two very, 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 very significant points. First point, magnetic monopole मतलब सिंगल पोल do not या does not exist. क्योंकि इसकी कैरेक्टर कैसी है? डाइपोल वाली है, मोनोपोल वाली नहीं है. राइट. सेकेंड पॉइंट, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स. नेट मतलब टोटल. नेट मैग्नेटिक फ्लक्स. yes Mehak, that's a good understanding. Very good. Keep it up. So net magnetic flux through any volume is zero. Is always zero. दैट मीन्स हाउ मच एवर मैं इसको पकड़ने की कोशिश, हाथ में नहीं आ रहा है. क्योंकि जितना आ रहा है वो चला जा रहा है. तो आप वॉल्यूम पकड़े, आप सरफेस पकड़े, आप कैसे भी पकड़े, थ्रू एनी वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. सो द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. The net magnetic flux through any volume is always equal to zero. This is the Gauss's law in magnetism. This is the Gauss's law in magnetism. The magnetic monopole does not exist, and the net magnetic flux through any volume is always equal to zero. I hope you got this. Is it done? Everyone, have you understood? Yeah.
No, Aniket, I thought you all will be taking it down. That's why I took a pause. Yeah. So this doesn't happen in electrostatics, okay? Please remember, whoever teaches you electrostatics and how we go about with electrostatics, यानी कि यही चीज electrostatics में भी है, Gauss's law in electrostatics. You know what is electrostatics, ना? आपने देखा रहेगा अभी ठंडी के मौसम में क्या होता है कि सिल्क का कपड़ा कैसे एक आवाज जैसे करता है, ऐसा लगता है कि शॉक लगा. प्लास्टिक में एक फ्रिक्शन जैसा होता है. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. जैसे आप लाइटनिंग लाइटनिंग जो होता है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और ऐसे ही गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे. सो आई होप ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपके लिए. Okay, so then we can basically at that point of time, we will be able to compare what is the Gauss's law in magnetism and what is the Gauss's law in electrostatics. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक सिंगल चार्ज को पकड़ के रख सकते हैं. सो देर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, यानी कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में. इट सेज व्हाट वुड बी द इक्वेशन फॉर गॉसेस लॉ. मतलब ये जो आपने इक्वेशन यहाँ देखा, ये जो इक्वेशन आपने देखा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू 0. तो उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द इक्वेशन फॉर गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म if a monopole of pole strength if a monopole of pole strength is enclosed by that surface. Can anybody tell me कि वो फॉर्मूला क्या होगा अगर हमने सिर्फ एक ही पोल को पकड़ के रखा. अगर हम पूरा पूरा मैग्नेट नहीं ले रहे, हमने सिर्फ, yes, Nusrat, very good, excellent, brilliant, very good. So what would be the equation for Gauss's law in magnetism if a monopole of pole strength, मतलब हमने एक ही पोल को पकड़ के रखा. यस राम, वेरी गुड. वो जीरो नहीं होगा फिर. आई होप एवरीवन एग्री. क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही पोल को पकड़ रहे तो आ ही रहेंगे, जाएंगे नहीं. यू अंडरस्टूड. अगर साउथ पोल को पकड़ रखा तो सब आ रहे हैं, नॉर्थ पोल को पकड़ रखा तो सब जा रहे हैं. तो हम लोगों ने जीरो क्यों लिया था? क्योंकि जो आ रहा था वो जा रहा था. वो नहीं होगा. यानी कि इसका आंसर आपको ऐसा लिखना था कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता, आप समझ रहे ना, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल जैसी चीज एग्जिस्ट करती लाइफ में, मैग्नेटिज्म की जो मोनोपोल है ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता, देन हम बोल सकते हैं कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो इसको एक लिखने का एक तरीका होता है, आई मीन द वे दे यूज टू राइट इट. सो दे राइट इट समथिंग लाइक फ्लक्स. They write something like flux is close integral of b bar dot ds bar is equal to mu naught into जो चार्ज रहेगा, तो मैं इसको पोल स्ट्रेंथ हम लोग QM कुछ लिख रही हूँ. तो म्यू नॉट तो आएगा ही, बिकॉज जहां जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है भाई, ये तो आएगा ही. बिकॉज दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्योंकि ये सब जो फ्लक्स के लाइन हम इमेजिन कर रहे हैं, कहाँ है ये, एयर में है, स्पेस में है, तो इसको हमें डालना ही पड़ेगा. सो इट इज बी बार डॉट डी एस बार. इस बार ये जीरो नहीं है, तो आपको क्या लिखना था कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता, किसमें, मैग्नेटिज्म में, एंड क्योंकि वो एनालॉगस टू द क्या है, नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और अगर वो एग्जिस्ट करता, then we can say that it is not equal to 0. I hope you're understanding this. That means this is integration over the full closed surface. यानी कि आपको ऐसा सोचना है कि सिर्फ मैंने, से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ नॉर्थ और साउथ ले लिया है. यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है. ये जो आ रहा है यहाँ पे, हम लोग जो सरफेस ले रहे हैं वो पूरा सरफेस पकड़ते हैं हम लोग. बट अगर ऐसा नहीं होता, मान लो एक ऐसा ही चीज था जहां पे सिर्फ जा रहे हैं या सिर्फ आ रहे हैं, देन इट वाज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि ये ऐसा लिखना होता है. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कुछ तो वैल्यू आएगा ना. अरे भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एस बार
is equal to mu naught into qm. qm मतलब ये पोल स्ट्रेंथ को मैंने ऐसे qm करके बोला है बिकॉज इट इज आस्क्ड पोल स्ट्रेंथ. स्मॉल m भी लिख सकते हैं. पोल स्ट्रेंथ हमने स्मॉल m लिया था ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं. सो ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ तो वैल्यू आएगा. सो देयर दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ करता क्या है कि कोई भी हम एक रैंडम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, रैंडम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कोई भी ऐसा एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसको एक बॉक्स के अंदर कैद करते हैं. फिर पूछते हैं भाई कितना लाइन है इसके अंदर, तो आप बोलोगे कोई भी लाइन नहीं है क्योंकि जितने लाइन आ रहे थे वो उतने लाइन चले गए. यू अंडरस्टूड. तो फिर आप बोलोगे द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? जीरो. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट मतलब मैथमेटिक्स कहती है डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस. क्या वर्ड है? डाइवर्जेंस. डॉट प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं डाइवर्जेंस. आपने ट्रेन में से लोगों को निकलते हुए देखा है कभी? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है वो. आपने देखा है ट्रेन में से लोग कैसे निकलते हैं? भाई ऐसे फैल के निकलते हैं लोग. कहाँ से निकल रहे पता नहीं चलता है. हम कितना ट्रेन को मिस कर रहे हैं, यू नो. यस, मतलब ऐसे एकदम ऐसे निकलते हैं कि कहाँ पता नहीं निकल तो आ गए, सब बाहर आ गए, यू नो. पुश पुश करके धक्का मार का. हाँ हाँ, बड़ी याद आ रही है. धक्का मार के जो बाहर आते हैं उसको डाइवर्जेंस कहते हैं. मतलब जब भी ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पे, स्पेशली आप चर्चगेट स्टेशन पे जाके ऊपर खड़े रहे और वो सारी गाड़ियां जब आके रुक जाती है और फिर सब जो बाहर निकलते हैं, या आप कहीं पर भी कोई भी स्टेशन पे, विरार स्टेशन, है विरार स्टेशन पे शाम का टाइम सब विरार की तरफ जाते हैं और सुबह के टाइम पे चर्च गेट पे ये दिखाई देता है. और तो आप एक फिजिक्स स्टूडेंट है, आप बोलोगे क्या भाई, क्या क्या आप क्या बोलने वाले हो? आप बोलोगे कि क्या बहुत बढ़िया, क्या है? डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है. डाइवर्जेंस मतलब फैलना. डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलना. मान लो आपके घर में वो एक रूम के अंदर पानी आ गया, मतलब पानी भर गया. आप डोर को खोलो, वो पानी कैसे बाहर निकलेगा? एकदम सीधे तरीके से बाहर निकलेगा क्या? ऐसे फैल के बाहर निकलेगा. करेक्ट. सो जब चीजें फैलती हैं वहां हम क्या कहते हैं? उसको डाइवर्जेंस. और यहाँ डाइवर्जेंस हो ही नहीं रहा है. आप इस पिक्चर को देखो, क्या डाइवर्जेंस? यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है. कहाँ? राइट साइड पे जो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें डाइवर्जेंस हो रहा है. यहाँ डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है क्योंकि जो निकल रहा है वो अंदर जा रहा है, जो निकल रहा है वो अंदर जा रहा है. इस तरीके से वो बाहर की तरफ निकल नहीं रहे हैं. तो समझ में आ रहा है बच्चा? कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल चीज है. काश मैं तुम लोगों को मिल पाती तो मैं तो हाथ से दिखा देती. हाथ में फिजिक्स होता, फिर हाथों हाथों में ये फिजिक्स सीख लेते हैं. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ भी नहीं है. गॉसेस मतलब इतना इतना इजी है. गॉसेस कहता है कि अगर चीजें अंदर जा रही हैं बाहर, उसी जो जो भी आप सरफेस कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर से अगर वो बाहर निकल के आ रही है तो वहां आपका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो जीरो रहेगा. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन मतलब समेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन. करेक्ट. जैसे आप एक जंक्शन पकड़ लो, ट्रैफिक सिग्नल, यू नो, ट्रैफिक सिग्नल में क्या कोई सिग्नल पे रुकता है? क्या कोई सिग्नल पे रुकता है? जो आ रहे हैं वो जाते हैं, यू नो. तो आप बोल सकते हो ऑयला, ये तो गॉसेस थ्योरम है उधर. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि द पांडु विल नॉट अलाउ ओनली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट यू नो जो आ रहे हैं जंक्शन में वो फैल के निकल जाते हैं. तो जंक्शन पे कोई नहीं रुक रहा है. राइट. सो वी विल से दैट द गॉसेस थ्योरम इज जीरो. तो उसी तरीके से अगर आप एक बॉक्स या कोई भी एक सरफेस पकड़ ले तो वहां अगर हम मैग्नेटिक लाइंस को पकड़ने की कोशिश करते तो हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो है ही नहीं. वो जो आ रहे हैं वो चले जाते हैं. Any doubt till now? Any doubts, guys? So can I ask you all some questions? I always like to ask questions. Okay. Can anybody tell me what is agonic lines? No, I always like to ask questions. Can you tell me what is agonic lines? Yes. Agonic lines वो lines होते हैं जहां जिसके हर एक point पर the line joining all those points where the angle of declination will be 0.
Angle of declination will be 0. Yes, very good. Can you tell me what is isoclinic lines? Very good. Dip 0 कौन बोला? 0 होता है क्या? 0 होता है क्या? नहीं, 0 नहीं होता है, सेम रहता है. यस, वो लाइन है, मतलब ये सब लाइंस ही हैं, तो आपको ऐसे सोचना है एक लाइन है अर्थ में जहां के सारे पॉइंट्स जो उस लाइन में है उसके एंगल ऑफ डिप क्या है? सेम है. अगर सेम वैल्यू है तो हम उसको आइसो क्लिनिक लाइन के नाम से जानते हैं. अच्छा, व्हाट इज आइसोडायनामिक? व्हाट इज आइसोडायनामिक लाइंस? आइसोडायनामिक लाइंस कौन से होते हैं? आइसोडायनामिक वो लाइंस होते हैं जहां तीन चीजें सेम हो सकती है. तीन चीजें, तीनों नहीं बता रहे आप. वेरी गुड प्रणय, पंचाल, मनीष, राम, राज. तीनों तीनों तीनों. बी भी सेम हो सकता है, वहां बी एच भी सेम हो सकता है. यस विधि, वेरी गुड. बी वी भी सेम हो सकता है. आप समझ रहे? बी भी सेम हो सकता है, बी एच भी सेम हो सकता है, बीवी भी सेम हो सकता है. ओके. क्या कोई भी मुझे सोलेनॉइड के बारे में कुछ बताएगा? लेट मी थिंक ऑफ द सोलेनॉइड. डू यू रिमेम्बर द सोलेनॉइड? ये कैसा सोलेनॉइड था? यस, हेलिक्स. वेरी गुड. राम सेज इट इज हेलिक्स. और ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात हो रही थी, हमने करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात की थी. और यहाँ पर जो है ये रहा मैग्नेटिक फील्ड. क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड. आप इस लाइन को अच्छे से देखें. ओके, आई कैन सी वंडरफुल चिल्ड्रन. माय गॉड, I can't even read it. Everyone has written wonderful points. Magnetic field is strong at the center, uniform at the center, diverging from one end, converging at the other end. Very good. Cross-sectional area will be smaller than the length of the solenoid. The solenoid is very, very long. Yes, very good. It's a very large and it is wound. It is a wire wound structure. And these lines will not intersect. One last point. Do you remember it is equivalent to करके कुछ आया था? It is equivalent to which structure? It is equivalent to a bar magnet. Yes, एक बार मैग्नेट के फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. सी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में. फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से बार मैग्नेट के चारों तरफ है उसी तरीके से एक सोलेनॉइड के चारों तरफ होगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. एंड गॉसेस लॉ का जो हमारा ये था फॉर्मूला था वो है क्लोज इंटीग्रल एक सरफेस करके डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट. अभी भूलना नहीं है लाइफ में. ट्रेन दिखा तो डॉट प्रोडक्ट हो गया है. दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो इसको हम गॉसेस थ्योरम कहते हैं. दिस इज नथिंग बट द गॉसेस थ्योरम. So I hope you will remember what I taught you today, because it's very, very important for me that you understand each and every factor out there. Yeah. So I think that's it from me today. I hope you had a great session. Gauss's law, solenoid, and the different types of charts that we have studied today. I hope you'll revise and come so that I can continue. I have to do a little bit of geomagnetism next time, and that will end with the chapter. And I will ask which new chapter I have to start, because I think I've mostly completed everything. Yeah. So if anything, please take care, everyone. Shabakher, Shubratri.